जो टी20 के नियम है उसके विद इन ही रहे तो अच्छा। ये स्लैश करने की कोशिश, बाहरी किनारा, और पहली गेंद पर 4 रन जैसे भी आए अतुल चाहिए अगर आपको कम से कम गेम में रहना है तो। फिर एक बार और थोड़ी सी बाहर निकलती हुई गेंद, थोड़ा सा हल्का सा The team of आउटस्विंग। Hawaiizada has finally landed into the stadium. We have Ayushman with us, Pallavi and Naman. Whoa! Well, tell us a little more about the film. Wait. Yeah. Okay, you know, I'm in this cricketing habit right now. I need to chew some gum before, entering the field. Of course, the film is about the guy who made the world's first aircraft. His name is Shivkar Talpade. In 1895, close to this stadium, this Chopati, and that was the place where the first plane of the world was flown. Woo! Whoa, Anthony, you're looking very different in the film. I mean, you're looking like a younger boy. How difficult was it to... Much younger. I am a young boy, hello. Much younger. How difficult was it to get the look and, transform I don't know, yourself? I just lost like 4-5 kgs for the film. That easy? That's about it. Oh. It's easy. I have a good metabolism. You know me, Poppy. Yeah, Come on. Come on. Yeah. That's fantastic. Now tell me, you guys are here to watch the cricket match. Now, which team are you guys supporting? Mumbai. Mumbai. I'm supporting both the teams because the protagonist of Hawaiizada is Shivkar Talpade, who's a Marathi, who's a Maharashtrian, and Mala Sagada Samasta. I've started speaking Marathi because of that character. Being a Punjabi, speaking Marathi is really tough. So can we hear like a message in Marathi? इतका पण माहित नाही. Okay, I can understand Marathi completely. That's what I said, Mala Sagada Samasta. But of course, I can't speak fluently. Sagade टाळ्या वाजवणार. Oh, not bad. Pallavi, tell us a little more about your character in the film. I play a tamasha dancer in the film who catches the eye of our aviator over here. And I perform to kind of a different take on a Lavani number. And then I kind of become a part of his journey as an aviator and as a plane maker, and spend a lot of time in the second half with this little chap over What here. is this little boy doing in the film? I'm playing Narayan's role. I'm his. He's my kaka in the movie, and I'm Narayan Talpade. He's Shivakar Talpade. We have 3 similar characters in the film. One's me, Hawaiizada. One is Chota Hawaiizada, that's Naman. One is Bada Hawaiizada, Mithun Chakrabarti. So we wear similar glasses. We are very similar in characteristics, and we are actually geniuses. Oh. I can't blow my own trumpet, sorry. Not bad. Okay, let's talk a little more about the cricket. Who's your favorite cricketer? My favorite cricketer has to be SRT, Sachin Ramesh Tendulkar. He's the legend, he's the god of cricket. And okay, when do we see you playing in CCL? Probably next year. I'm dying to play for CCL because I've played under 19 district level cricket as a leg spinner, so I want to play CCL. Fantastic. All the best for Hawaiizada. Thank you. Thank you very much. पर कम ओवर से मुझे लगता है कि हायर रन रेट थोड़ा सा फर्क आसान हो जाता है उससे, क्योंकि लंबे समय तक हायर रन रेट को बनाते रहना मुश्किल रहता है। तो ये एक मुझे लगता है हल्की सी एक किरण है जो उम्मीद की मुंबई हीरोज के लिए भी ली है यहाँ पे, और इसीलिए आफ्ताब शिवदसानी बड़े करेक्ट बल्लेबाज हैं, तो धीमी शुरुआत देख के सेट होके मारना चाहते हैं। मुंबई हीरोज के सपोर्टर्स उम्मीद करेंगे कि उनके बल्लेबाज जो है, और ये मिस फील्ड थर्ड मैन पर डेलिकेट लेट कट किया। जेनेलिया डिसूजा देशमुख खुश नहीं है। रितेश देशमुख की पहली गेंद पर चौका। गेंद इतनी बुरी नहीं थी, बड़ा डेलिकेटली प्लेस किया, पर फील्डिंग में थोड़े फील्डर पस्त रह गए। बड़ी अच्छा गाइड किया आफ्ताब ने, ज़्यादा ज़ोर सी शॉट लगा नहीं रहे हैं, पहले उछाल जो है और अपना बैलेंस जो है वो बनाना चाहते हैं, सेट होके फिर बड़े शॉट्स खेलना चाहते हैं। बहुत बढ़िया लेंथ, अच्छी गेंदबाजी। ओह, वेल बॉल। तो अच्छी शुरुआत है, 16 बिना किसी नुकसान के, एकदम से बिना कोशिश किए। देखिए तो ये बताता है कि विकेट कितनी ज़बरदस्त है, आउटफील्ड कितना तेज़ है, तो ये मैच बहुत बढ़िया बन सकता है। एक बड़ी पारी और 2 कैमियोज चाहिए। शुरुआत अगर अच्छी हो तो फिर काम आसान हो जाता है आगे जाते हुए। जैसे हमने जो छक्के लगाए थे 99 माफ कीजिएगा, वीर मराठी बिग ब्रदर फाउंडेशन जो एक इनिशिएटिव है, यहाँ पर बहुत ही उनका योगदान। नो सेकंड। अब धीरे धीरे लाइट्स जो हैं
जो जोर पकड़ती जा रही हैं। ट्वाइलाइट का जो समय रहता है जब सूरज अस्त होता है, तो ये जो हल्की सी जो लाइट इसमें बल्लेबाजी करनी थोड़ी सी दिक्कत रहती है ट्वाइलाइट में। ओह, उछाल देखिए कितना, और बहुत ही स्मूथ एक्शन रितेश का। आराम से रे। साफ नजर आता है कि बड़े फ्लेक्सिबल हैं, जो लिम्स हैं उनके स्टिफ नहीं है। कई बार ज़्यादा जब वेट ट्रेनिंग बॉडी बिल्डिंग रहती है तो वो स्टिफनेस जो आ जाती है वो खास नज़र आती है, और रितेश में ऐसी बात नहीं है, काफ़ी सफल है। तो इसीलिए जो लूज आर्म है उससे अच्छा निप मिल रहा है विकेट से। और सोच भी अच्छी, 2 गेंद आगे डाली, फिर एक शॉर्ट गेंद डाली, बैट्समैन को अपने टोज पे रखा है। ये अच्छी गेंद से ऑन साइड पर खेला है और 2 रन से ज्यादा ही मिलेंगे लगता है, 4 रन के लिए। ये समीर कोचर का अच्छा शॉट, गैप अच्छा निकाला, और स्कोर तो जैसे ये एक एक्सप्रेस ट्रेन की तरह भाग रहा है। हाँ बिल्कुल, ऐसा लगा कि डिफेंड किया था, ऐसा लगता है ढलान सी है, जैसे लॉर्ड्स की मैदान में कमेंट्री बॉक्स में बैठे आप, तो उसी तरफ लेग स्टंप की तरफ वो बढ़िया फ्लिक, इनमें जो कलाइयों का जो फ्लिक लगा है उसमें जोर। रितेश की गेंद अच्छी। ओहो, ये क्या हो गया? वेल बॉल। वीर मराठी ने बनाया 230। ये बहुत ही अच्छा शॉट आफ्ताब शिवदसानी का, फुल टॉस गेंद थी, बीट किया मिड ऑफ के फील्डर को, 4 रन। और देखिए दर्शकों की भीड़, और दोनों ही टीम एक तरह की लोकल टीम्स हैं, पूरी सपोर्ट है। जो डगआउट खुश था वीर मराठीज का, अब वैसा ही माहौल थोड़ा सा मुंबई हीरोज के डगआउट में नजर आ रहा है। और बड़ा आसानी से देखिए, बिना कोशिश किए जब रन आते हैं वो अलग मजा आता है। बल्लेबाज कोई रिस्क नहीं ले रहा, उसके बावजूद उसे रन मिल रहे हैं। ओह, ऐसा लगा कि टाइम नहीं हुआ, पर फिर भी 6। तो ये देखिए एक और उदाहरण इस विकेट का। अतुल, मैं तो हैरान रह गया हूं आज, जिस तरह से, जितनी आसानी से ऐसे लग रहा है कि इजीली छक्के लग रहे हैं। ये देखिए आप, ओवर पिच तो थी लेकिन ऐसा लग रहा है अंडरकट किया, ऐसा लगा कि मिस हिट है और सिर पे खड़ी हो गई बॉल पर। देखिए 6 रन, और इतनी छोटी बाउंड्रीज नहीं है। मैंने आईपीएल के मैचेस में इससे भी छोटी बाउंड्रीज देखी हैं। मेरे ख्याल से 65 गज की तो है कम से कम बाउंड्री, और ये हल्का स्विंग है रईस लश्करिया के लिए। आजकल बैट्स भी, जो विलो है, जो वुड है, बहुत जबरदस्त। बिल्कुल आधे आधे पेड़ काट के बल्ले बनाए जा रहे हैं आजकल लगता है, और उसी हिसाब से दमखम भी बल्लेबाजों में ज्यादा है, मसल्स हैं, और वेट ट्रेनिंग के बाद वो बहुत बढ़िया गेंद, करीबी मसला और आउट। बिल्कुल सही डिसीजन, अक्रॉस द लाइन, बहुत ही बढ़िया हल्का सा स्विंग। और ये अच्छी गेंद, और शायद मौका चूके वहां पर देश पांडे विकेट कीपर। ये तो मेरे ख्याल से निराश है या कुछ जख्मी हो गए हैं। बाहरी किनारा शायद लगा था। ये देखें लश्करिया की गेंद, और ओ बिल्कुल ग्लव्स में आया और बाहर निकला। मुश्किल कैच रहता है, कीपर को इसका जिम्मेदार नहीं मान सकते आज। अगर ऐसी बॉल चिपक जाए तो चिपक जाए, ये ड्रॉप कैच में नहीं मानता मैं। अब बड़ा अच्छा एक टैक्टिक है, मैं मानता हूं देश पांडे का, ऊपर आके खड़े हुए और प्रेशर डाल दिया बल्लेबाज पे, आगे ना ज्यादा जाए। बहुत बढ़िया आउट स्विंग कर रहे हैं, और वहां खिलाड़ी एक पीछे स्वीपर कवर पे है, बहुत बढ़िया लेग वर्क। तो चलिए, बाउंड्रीज का सिलसिला जो है वो थोड़ा टूटा है और विकेट भी मिल गया। तो 34 पे 1 3 ओवर के बाद।